recording. So what you have to do now कि आपको मैंने जब पहली बार एरे पढ़ाया था तभी मैंने ये बोला था कि whenever we have to go through with array, fine, whenever we have to go through with array, तो आपकी चीजें काफी सीमित होती थी, है ना? सीमित इन द सेंस स्टैटिक होती थी, मेमोरी लोकेशन स्टैटिक होता था, ये मैंने आपको सिखाया था, ठीक है? तो मेमोरी लोकेशन स्टैटिक होता था, तो once it is fixed, it cannot be altered. That's the only issue. Once it is fixed, it cannot be altered. तो ऐसे केस में अगर मान लो in the run time, if we have to in the runtime we have to perform something, we have to perform some insertion or deletion operation or any updation in the data structure, so then array is a perfect data structure for that or not. तो array जो है वो perfect data structure है या नहीं उसको यूज करने के लिए, ठीक है? so basically जब आपसे कोई पूछेगा ये जब आप कभी इंटरव्यू दे रहे होंगे, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देंगे एंड यू विल से कि एल्गोरिदम मेरा बेस्ट पार्ट है या डेटा स्ट्रक्चर मेरा बेस्ट पार्ट है, सो दे विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन टू आस्क व्हेन दिस इज योर बेस्ट पार्ट एंड यू हैव डन दिस इन जावा. So they are very excited because the maximum package you can get in the algorithm part. If you are an algorithm developer, I mean nobody can beat you, trust me. So now my point is कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हमेशा ही आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो the first question they will ask like if array was there, what is the point that linked list was introduced and what were the benefits out of it? Fine. So in the introduction part, on your slide, on the slide I have shared, it is clearly written that a linked list is a data structure. And what is data structure? जो data को organized way में रखता है. So a linked list is a data structure which can change during execution. यही सिखाया था मैंने आपको first class में. Now, how array fails to perform what linked list is doing now? Fine. So array work well for unordered sequences. हमेशा याद रखना जब आप ऐसा जवाब देते हो सामने वाले को तो he come to know कि आपको पता है कि ये चीज है क्या. So array works well for unordered sequences and even for ordered sequences. चलेगा? ये आंसर से सब एग्री करते हैं. If they don't change much, अगर उनको ज्यादा छेड़ा ना जाए, टैम्परिंग ना करा जाए, तो वो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड दोनों सीक्वेंसेस पे चलते हैं सही. बट इफ यू वांट टू मेंटेन एन ऑर्डर्ड लिस्ट दैट अलाउ क्विक इंसर्शन एंड डिलीशन, फाइन. अगर मान लो तुम्हारे पास पहले से एक ऑर्डर्ड लिस्ट है और आप चाहते हो कि उसमें जो इंसर्शन और डिलीशन है वो बड़े क्विकली परफॉर्म हो जाए, तो वी शुड यूज लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर. वी शुड use linked data structure. So this particular slide or this particular lecture will detail you about how to do this. Fine. How maintaining an ordered array. First we will go through with how we will maintain an ordered array. तो इसमें आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है? तो बाइनरी सर्च आप रिकॉल करो. बाइनरी सर्च में क्या करते थे? So we saw that how binary search can find elements very quickly in an array that is sorted. जो sorted होता था उसको बड़ा जल्दी से ही वो निकाल देता था. So what we can get from there? We should keep our array in sorted order. ये हमारे को वहां से सीखने को मिला. But inserting a new element in ordered array is difficult always. सही है? अगर मान लो तुम्हारा array ordered है और तुम नया एलिमेंट उसमें इंसर्ट कर रहे हो तो ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है? सो द मेन प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टू मूव ऑल द लार्जर एलिमेंट्स over to make room for the new elements to be placed in a correct order position, and this can be done only by insert function. ठीक है? So this is only can be done by insert function. तो अभी आप रिकॉल करो जब आपको मैंने मिडिल ऑफ द एरे में इंसर्शन सिखाया था, है ना? लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस वेर रेज्ड कि सर कैसे हुआ, हाउ इट इज गेटिंग शिफ्टेड, हाउ इन प्लेस ऑफ एआई
ai+1 has been located. Fine. So हमने पहले उसके लिए रूम बनाया and then we have marked that particular thing into that point. So we will see it by example also. Don't worry about that. So let's see what we have in the theory part. Fine. तो ये सारी चीजें आप याद रखना, क्योंकि आप इसको C++ में नहीं जावा में कर रहे हो, तो ये पॉइंटर का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं होएगा. लेकिन ये जो पॉइंटर है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, दिस इज नॉट दैट पॉइंटर जो आपने C और C++ में पढ़ना है. Java is not at all a pointer oriented programming language, but this pointer means something else. I'll tell you what. Fine. So आपको सिर्फ ये समझना है, successive elements are connected by pointers. ठीक है? Successive elements, for example, मान लो आपके क्लास में 4 बच्चे हैं जिनका नाम मेरे को याद है, हिमांशु, चिराग, प्रतीक, गौरव, ध्रुव, आयुष. 6 बच्चे मैंने बता दिए, ये 6th एलिमेंट है. अब मैं ये पॉइंटर से अगर कनेक्टेड होंगे, तो अगर मैं पूछूंगा, और या फिर ये एक प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे होंगे विद इन द सेम क्लास दे आर हैविंग और इन डिफरेंट क्लास विदाउट आई मीन लिमिटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल डोमेन, सब अपने अपने घर पे हैं. लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि इसकी ईमेल आईडी किसके पास है, आयुष की, तो वो मेरे को दूसरा वाला बंदा बता रहा है, सर आयुष मेरा प्रोजेक्ट पार्टनर है, उसकी ईमेल आईडी ये है. सो दिस इज कॉल्ड कनेक्टेड बाय पॉइंटर. एक दूसरे का एड्रेस होना. अब उस एड्रेस पे जाओगे तो पता चलता है, अच्छा ये आयुष का एड्रेस है, ये चिराग का एड्रेस है, एंड सो ऑन. वी विल डिटेल इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आल्सो, डोंट वरी. यहां तक किसी बच्चे को कोई समझने में दिक्कत है तो बताओ. जो लास्ट एलिमेंट है वो हमेशा नल को पॉइंट करेगा, कभी भूलना मत. जो इसका लास्ट एलिमेंट है वो हमेशा नल को पॉइंट करेगा, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है. ठीक है, और मैं वापस इसको हाईलाइट कर देता हूं तुम्हारे समझने के लिए. लास्ट एलिमेंट अभी आएगा तब हम इसको और अच्छे से देखेंगे. सो द लास्ट एलिमेंट विल पॉइंट टू नल. फाइन. सो see the next point. It can grow or shrink in size during execution of the program. चलेगा? यानी कि इसका ये मतलब है कि ये अपने साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है while run time, while executing that program, and that is the main difference why array were having drawbacks, and this particular data structure has come to overcome that particular drawback. Fine. तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं. सबसे पहला, सारे एलिमेंट्स, ठीक है, अब मान लो ऐसे स्क्वायर में बना होता है, अभी वो आपके आगे आएगा. लेकिन अगर सपोज करो कि एलिमेंट सारे कनेक्टेड हैं, तो पहला पॉइंट ये होगा कि सारे एलिमेंट पॉइंटर के थ्रू कनेक्टेड होंगे. ठीक है. इसके बाद आपको सीधा प्रोग्राम पे आना है. ठीक है, इसके बाद आपको सीधा प्रोग्राम पे आना है. थ्योरी पार्ट आपको यहीं क्लियर कर लेना है. कोई दिक्कत होगी तो प्लीज आस्क बैक ट्रैक. सो लास्ट एलिमेंट जो है वो पॉइंट करेगा नल को. एक एग्जांपल से सब क्लियर करता हूं अभी मैं. Successive elements are connected by pointer. The first point is the last element will point to null. Second point to remember. Fine. ये सारी कन्वेंशनल चीजें हैं तो थोड़ा याद करना पड़ेगा, जैसे मैथ्स के थ्योरम होते थे. थोड़ा सा दिमाग में रखना कि अच्छा इसका लास्ट पॉइंट है वो नल को पॉइंट कर रहा है. नल को पॉइंट करने का क्या मतलब है, ये बताना. जैसे स्ट्रिंग में आप बताते थे सी के अंदर कि दिस इज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, और इसके आगे कोई एड्रेस इसके पास है नहीं, यानी कि यहाँ पे ये चीज खत्म है. ठीक है. इट कैन ग्रो और श्रिंक, यानी कि अपने साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है. दिस इज द थर्ड पॉइंट. व्हाट इज फोर्थ पॉइंट? इट कैन बी मेड जस्ट एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड, यानी कि जब तक काम हो इसका तब तक आप इसको बनाओ और फिर इसको डिलीट कर दो. सो यू कैन फ्री योर मेमोरी साइज ऑल्सो. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. So we have gone through with static memory allocation in the array part. Now this is dynamic memory allocation. जब तक काम है तब तक उस चीज को लो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आप इस चीज को कभी नहीं भूलोगे.
आपको सब बोलते हैं ना कि जूम का जो वीडियो है, जो हम अभी मैं पढ़ा रहा हूँ या आपसे जो डिस्कशन कर रहा हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग कहीं पे सेव हो जाती है, क्लाउड पे सेव हो जाती है, क्लाउड स्टोरेज, फाइन, क्लाउड सिक्योरिटी। सो जब तक ये जरूरी है तभी तक वो रिक्वायर्ड है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड में। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैव टू टेक अ कैब, फाइन, एंड कैब जो है वो डेफिनेटली एक्सपेंसिव होएगा, ठीक है, अगर आपका घर दूर है और यू हैव टू टेक अ बस, फाइन, स्लीपर बस आपने लिया, तो आपको वहां से सोर्स स्टेशन से डेस्टिनेशन तक आना है। सो यू नीड नॉट टू बाई द होल बस कॉलेज आने के लिए। आपको क्या करना है कि एज लॉन्ग एज यू रिक्वायर दैट बस, यू हैव हायर्ड अ सीट फॉर यू और फॉर अ फ्रेंड ऑफ यू, और जब तक आपको उसका काम हुआ आपने उसको यूज करा, एंड देन यू हैव फ्री दैट स्पेस एंड somebody else can use that. So it will hardly take 1,000 or 2,000 rupees, but if it will ask the cost of the bus, it is worthless to use that. तो जब क्लाउड नहीं था, जब लिंक लिस्ट नहीं था, तो एरे में इस तरीके से मेमोरी वेस्टेज होता था। उस मेमोरी वेस्टेज को जो है बचाने के लिए, और उस मेमोरी वेस्टेज को का जो प्रॉब्लम था उसको ओवरकम करने के लिए लिंक लिस्ट आया। देयर इज नॉट ओनली लिंक लिस्ट, देयर इज अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में सिर्फ लिंक लिस्ट नहीं होएगा, उसमें स्टैक भी होएगा, फाइन। उसमें स्टैक होगा, लिंक लिस्ट होगा, क्यू होगा, सर्कुलर क्यू होगा, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग। सो वी विल सी इट वन बाय वन हाउ इट इज वर्किंग, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर ये इट कैन बी मेड जस्ट एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड, अगर ये वाला पॉइंट आप पूरा करते हो तो डेफिनेटली द लास्ट पॉइंट विल बी जस्टिफाइड, दैट नॉट वेस्ट मेमोरी स्पेस। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी वाले दिन ही बताया था कि मेमोरी स्पेस मैटर नहीं करता है आजकल, लेकिन एक हद तक ही नहीं करता है। अब जैसे जीमेल है जीमेल जो तुम्हारा अकाउंट है वो जावा में ही प्रोग्राम्ड है ना, लेकिन उसमें मैक्सिमम मेमोरी स्पेस कितना है, 15 GB। तो तुम 15 GB का डेटा वहां पे स्टोर करके रख सकते हो, किसी को मेल किया या कोई फाइल रखी। 15 GB से बाद जो है वो गूगल तुम्हारे को ऑप्शन देता है कि आप मेमोरी खरीदना चाहेंगे क्या, आप कुछ क्लाउड की मेमोरी हमारे से परचेज करेंगे क्या, फॉर अ मंथ और फॉर अ ईयर सब्सक्रिप्शन लाइक दैट। सो मेमोरी का अभी भी पैसा लगता है, बट इन नॉट दैट वे जैसे कि 1970s और 80s में लगता था, fine. So mostly time complexity is important, but space is not as much negligible, like it cannot be considered. इस वाले स्लाइड में किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज गिव मी 1 minute, I will share the next slide and then we will have some diagram and then you can ask some question. So there is a question, let me check it. Gaurav, of course I'm sharing everything, PDF, doc file सारे share करता हूँ. This is a PPT, so definitely I'll share it with you. Everyone, I mean with the whole class, and on Chalkpad also I will upload it. Fine. कोई क्वेश्चन है यहाँ तक किसी भी बच्चे का? सो यहाँ पे सस्पेंस खत्म हुआ। अब देखो ये लिंक लिस्ट है। अब आपने डेफिनेटली थोड़ा सा होमवर्क करा होगा, पढ़ा होगा इसको, है ना? तो अब देखो कि ये वाला जो है वो एलिमेंट है, अब मेरे को थोड़ा सा हाइलाइटर यूज करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब ये हमारा पॉइंट है। Now the point is, we are having three elements, right? We are having three elements. It could be like A, B, and C. For example, मैंने क्या बोला था? मान लो मानिक है, मान लो हिमांशु है, मान लो चिराग है और प्रतीक है।
तो ये तीनों एक दूसरे का एड्रेस होल्ड रखते हैं बिकॉज दे आर फ्रेंड्स और दे आर प्रोजेक्ट पार्टनर। इफ आई एम आस्किंग ए वेयर इज बी, देन ए विल पॉइंट मी आउट कि बी का एड्रेस यहाँ स्टोर है। जैसे ही इस एड्रेस पे गए, इट विल पॉइंट टू द बी वैल्यू। Then B is having the address of C. So by using this pointer, we will reach at C. Now the question arises कि सर ये वो वाला पॉइंटर तो नहीं, क्योंकि जावा में तो ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा, तो ये वो वाला पॉइंटर नहीं है, ये बस एड्रेस को होल्ड रखता है। फाइन। सो बेसिकली it is conventional approach of linked list. Fine. So this is a basic linked list for you. And what will C hold as per the example we have gone through with? C क्या रखेगा? C रखता है null value को। तो जो last value होगा, last element will point to null. That's only because आपको पता चल जाए कि ये last element जो है वो null है। ठीक है? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? अब यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ हेड एंड देयर इज अ टेल। फाइन। सो द फर्स्ट एलिमेंट, और सपोज करो ये लिंक लिस्ट है जिसमें नंबर ऑफ नोड एक ही होता, वो नोड कौन सा होता? ए होता। ये एक ऐसा लिंक लिस्ट है जिसके अंदर, अभी आप कंसंट्रेट मत करो कि बी और सी है, फॉर सम टाइम, फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम अब समझो कि हमारे पास सिर्फ ए लिंक लिस्ट है। गेटिंग माय पॉइंट? अब इस ए लिंक लिस्ट में जो हेड पार्ट है वो शो करेगा एलिमेंट्स को, कोई दिक्कत नहीं। और टेल वाला पार्ट क्या करेगा? जो सबसे लास्ट एलिमेंट है वो क्या करेगा? नल को पॉइंट करेगा। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत इसका स्ट्रक्चर समझने में या कोई भी इशू यहां तक? सो यू कैन आस्क मी। I'm waiting for your so if you are having no doubt, it is very happy news for me. अब देखो, keep tracking of the linked list. This is the second point. Keep tracking of the linked list. So what my point is कि ये जो तुम्हारा पॉइंट था, ये जो A और B और C है, ये अगर आपसे कोई बोलेगा तो आप क्या बोलोगे? What are these? These are linked nodes. क्या बोलोगे? कि सर ये linked nodes हैं। Fine. And इसमें बेसिकली हमारे पास डेटा होता है और नेक्स्ट वाले जो डेटा है उसका एड्रेस होता है। हेड वाला पार्ट जो है वो बेसिकली अपना डेटा कंटेन करता है, जो हेड वाला पार्ट है वो बेसिकली अपना डेटा कंटेन करता है, एंड जो नेक्स्ट हेड के पार्ट होता है उसी पर्टिकुलर लिंक्ड नोड में, फाइन, सो इट विल कंटेन एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, फिर आपको वो नेक्स्ट एड्रेस पे पहुंचा देता है। सो ये आप बेसिकली ऐसे स्टार्ट करते हो, नोड स्टार्ट न्यू नोड, स्टार्ट नेक्स्ट न्यू नोड, स्टार्ट नेक्स्ट न्यू नोड। सो जो फर्स्ट पॉइंट है आपका हेड आपको दिख रहा है, दैट इज द स्टार्टिंग नोड। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द स्टार्टिंग नोड। तो ये आप याद रखना, ये वाला पॉइंट, ठीक है? ये हमेशा आपको इसका एड्रेस बताएगा और ये पर्टिकुलरली एलिमेंट है, और फिर इसके जो, ये तो हेड वाला पार्ट हो गया, और ये इसके टेल में इसका एड्रेस होगा, फिर ये वैल्यू इसके, ये लास्ट एलिमेंट है तो यहाँ पे ये क्या होगा? नल के बराबर होगा, ठीक है? तो ये होगा नल। इजी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ क्लियर और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, keep track of linked list. Linked list provide flexibility. Definitely static memory allocation है या dynamic? Your answer will be dynamic memory allocation है sir. तो if it is dynamic memory allocation, flexibility will always be there.
So in allowing the items to rearrange efficiently is the basic feature of that linked list. Getting my point? तो अभी तक हमने क्या सीखा? What is linked list और what is the benefit of linked list? Basically हमारे को क्या benefit होता है इसको यूज करके? सही है। तो ये सारी चीजें अभी हमने बस इतना ही जाना है और हम इसमें कोई रेगुलर टर्मिनोलॉजी नहीं जानते हैं। ठीक है। नाउ अगर हम बात करें कीप ट्रैक ऑफ द लिंक लिस्ट, इसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर हैं। सो मस्ट नो द पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, स्टार्ट, हेड, ईटीसी। वापस चलो, ये रहा। ये चूंकि ए पहला एलिमेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हेड जो है, ये हेड जो है वो एलिमेंट को कर रहा है डिनोट। फाइन। और जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा स्टार्ट बताता है। ठीक है। और स्टार्ट कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर। फाइन। स्टार्ट कैन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट स्टार्ट कैन बी डन फ्रॉम ए और सी, इट कैन बी डन फ्रॉम बी ऑल्सो। So we will see it when we will perform the examples. Fine. For now, you have to keep this thing. Must know the pointer of the first element. तुमको ये पता होना चाहिए कि ये pointer कहीं मेरे को गलत एड्रेस पे तो नहीं ले जाके छोड़ेगा. If we are taking a start, then we have to focus on a start node. If we are taking something like head of the node, then we have to focus on the element of the node. So these are the basic point जिसको अपने को फोकस करना है। ठीक है। तो हमेशा तुम्हारे पास क्या होता है? डेटा और नेक्स्ट। मैं वापस चलता हूं और यहां पे बताता हूं। ये जो नोड है आपका, ये यहां पे मैं तुमको क्लासरूम फाइल में भी बताऊंगा, बट उसका टाइम आएगा तब। ये वाला पार्ट जो है इसको हमेशा बोलते हैं, ये कई बार तुम कितने वेबसाइट पे देखोगे तो ये होता है हमेशा डेटा, और ये वाला पार्ट जो होता है ये बोलते हैं हमेशा नेक्स्ट। फाइन। ठीक है। जो एलिमेंट वाला पार्ट होता है वो होता है डेटा, और जो नेक्स्ट बताता है यानी कि वो नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या है वो देख लो, वो होता है ये पॉइंटर। ठीक है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? नाउ अब हम वापस अपने स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट हमारा पूरा हो गया। अब लिंक लिस्ट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कहां पे रीअरेंज करके प्रोवाइड करेगा? पहला जब इंसर्ट करोगे एलिमेंट को, और दूसरा जब डिलीट करोगे एलिमेंट को। फाइन। इवन इफ यू वांट टू अपडेट दैट पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर, तो आपको इंसर्ट और डिलीट परफॉर्म करवाना ही पड़ेगा। अब एक एग्जांपल बोला कि इलिस्ट्रेशन फॉर द इंसर्शन। फाइन। So we will finish it off like that कि हम इससे familiar हो जाएं. Then I have lots of other data to make you practice. So we will do that. Fine. So just go through with it once and ask your question if there is. ये हमने पहला एग्जाम्पल पढ़ा था जो हमारे एग्जाम्पल में था कि we are having a linked list which is having 3 nodes. We are having linked list which is having 3 nodes. The first node is A, the second node is B, and the third node is C. सी का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें नल स्टोर है, बी का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें सी का एड्रेस स्टोर है, ए का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें बी का एड्रेस स्टोर है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखो, इसने एक टेम्पररी वेरिएबल लिया टीएमपी। ठीक है। अब क्या करना चाह रहे हो? इंसर्शन करना चाह रहे हो, तो इसने यहाँ पे क्या करा? एक टेम्प वेरिएबल लिया। ठीक है। और उस वेरिएबल का नाम दिया इसने x. It could be like x element. Fine. Item to be inserted. कोई दिक्कत नहीं। अब a वाला पार्ट है उस पे आप इंसर्ट करोगे या फिर at the end or at the beginning. So this will be inserted in the beginning, I guess. Fine. So insertion from the beginning, insertion from the end, very easy to done. We have done it in array also, but in the middle we have to make the things changed. Fine. हमको उसके लिए जो है स्पेस जो है वो कलेक्ट करना पड़ता है, और स्पेस कलेक्ट करने के बाद फिर हमको वहां पे स्टोर करना पड़ता है। तो अब देखो A B C सेम ऐसे ही चल रहा है।
ए वाला पार्ट जो है उसको इसने थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करा। अब मान लो ए में 4 स्टोर है, बी में 5 स्टोर है और सी में 6 स्टोर है। आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो तो 4, 5 और 6, फाइन। 4, 5 और 6 स्टोर है, तो अगर आप 3 इंसर्ट कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली वी ट्राई टू इंसर्ट इट बिफोर 4, फाइन, before A. And if we are inserting something which is lie in between A and B, so we will insert it in the middle of A and B. Getting my point? Easy hai concept? ठीक है। अब देखो, am I audible? Because internet is showing unstable. Am I audible to everyone? Just anybody can say that. हिमांशु, सुनाई Yes, दे sir. रहा है? स्क्रीन शेयर्ड है? Yes, sir. ठीक है, चलिए। Yes, sir. अब यहाँ पे ए जो है वो, ओके अर्षिता, फाइन। दिक्कत आएगी तो मैसेज कर देना फटाफट, क्योंकि बीच में कहीं इंटरनेट कनेक्टिविटी जाती है तो अभी यहाँ पे जो सिनारियो है उसमें आपने ए को बी से अलग कर लिया। अब देखना हाउ इट इज वर्क। ऊपर आपने टेम्पररी वेरिएबल लिया था, अब आप कह रहे हो कि जो ए का नेक्स्ट है उसमें आप एक्स का एड्रेस डाल दो। मानते हो या नहीं? ए का जो अगर कुछ इंसर्ट करना है तो बेसिक लिंक लिस्ट समझ गए हो ना? तो अगर कुछ इंसर्ट करना है जो ए और बी के बीच में आएगा, तो ए का जो डेटा पार्ट है मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और ये हमेशा ही होगा, ठीक है? तो कभी किसी भी क्वेश्चन में वो मत होना। ये रहा तुम्हारा डेटा पार्ट, ठीक है? और ये वाला पार्ट हो गया नेक्स्ट पार्ट, यानी नेक्स्ट का जो एड्रेस होता है। सही है? तो डेटा और नेक्स्ट। अब आपको ये इंसर्ट करना है ए और बी के बीच में। आपको ये इंसर्ट करना है ए और बी के बीच में। जब ए और बी के बीच में कुछ इंसर्ट करना है तो बी से तो इसका कोई लेना देना अभी नहीं होगा, ठीक है? पहले सबसे पहले क्या होगा, जो करंट नोड आप ऐड करोगे दैट इज दिस इज करंट नोड, जिसको आपने टेम्पररी नोड पहले लिया था। कंफ्यूज मत होना, दैट आइटम हैज टू बी इंसर्टेड। सो नाउ ए विल होल्ड द एड्रेस ऑफ एक्स। ए विल होल्ड द एड्रेस ऑफ एक्स, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो गया है, नेक्स्ट जो होगा वो क्या करेगा, एक्स का एड्रेस करेगा, ठीक है? एंड एक्स विल होल्ड द एड्रेस ऑफ बी। चलेगा? x will hold the address of b, b will hold the address of c as it is, nothing to worry। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत? क्लियर है कंसेप्ट? लेट मी चेक। ओके, और कोई हिमांशु के अलावा? मतलब आप वो लोग बताओ जिनको दिक्कत है, जिनको दिक्कत नहीं वो मैं समझ लूंगा कि कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया सबको? सॉरी। अब देखो नेक्स्ट टाइम पे ये क्या करेगा, ठीक है? अब जैसा मैंने बताया वही हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। एक्स का जो नेक्स्ट पार्ट है वो बी को होल्ड करेगा, ए का जो नेक्स्ट पार्ट है वो एक्स को होल्ड करेगा। वी आर गोइंग गुड, एंड दिस इज द स्यूडो कोड फॉर इंसर्शन। इतना ही काम था इंसर्शन में। कितना आसान और कितना इंटरेस्टिंग है, इजंट इट? ठीक है, तो जितने आगे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। अगर डीएसए विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट, अगर मैं उसको सही से पढ़ा पाऊँ तो आई होप, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना? तो आप यहाँ देखो कि ये वाला जो चीज रन हुआ है इसको ध्यान से देख लो। बस ये काम हम कर रहे हैं बेसिकली व्हेन वी आर इंसर्टिंग, वी आर परफॉर्मिंग इंसर्शन ऑपरेशन इन लिंक लिस्ट। तो किसी भी बच्चे को जरा भी डाउट हो तो यही पूछ लेना, क्योंकि अगर आप छोटे नोट पे काम करना सीख गए तो बड़े नोट पे भी सीख जाओगे। जितना कंसेप्ट मैंने आपको बताया है उसमें कहीं से कोई भी चेंज नहीं होएगा, ठीक है? सो दिस इज pseudocode for you for insertion. So
ये मैं आपसे शेयर करूंगा जब हम इसको बनाएंगे, तब हम देखेंगे कि हाउ वी आर परफॉर्मिंग इट। फाइन। सो टाइप डेफिनेशन स्ट्रक्ट ये आपने लिया जावा के अंदर, ठीक है। आपने यहाँ पे स्ट्रक्ट नाम से लिया है, तो स्ट्रक्ट का आप जो आइटम बना रहे हो वो है आइटम डेटा, और फिर एनडी जो है वो उसका नेक्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, पॉइंटर लगा हुआ। तो मेन डेटा एंड नेक्स्ट ये आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। फिर एग्जैक्टली दैट नोड दैट हैज टू बी इंसर्टेड, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना क्लास बनाया, फिर आपने क्या करा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा। क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के बाद उस एलिमेंट को मेंशन करा जिसको आपको एंट्री करनी थी। अब यहाँ पे आपने अपना फंक्शन यूज करा void insert, ठीक है। तो नोड और स्टैटिक साइन करंट आपने दिया, ये रहा वो नोड जिसको आपने इन कराया है। अब नोड टेम्प आपने एक टेम्पररी वेरिएबल लिया जहां पे उसको आप डिक्लेयर कर रहे हो, जहां पे आप उसको स्टोर करोगे, एंड देन यू हैव मूव द पार्ट इन द इंसर्ट द पार्ट इन द थिंग। सो टेम्प के अंदर आपने नोड को इंसर्ट करा, टेम्प के अंदर आपने नोड को, जैसे स्वैपिंग में चलता था, तो टेम्प के अंदर आपने नोड को इंसर्ट करा। एंड मैलॉक आपने इसलिए लगाया है क्योंकि एक ब्लॉक जो है वो पूरा उसको एक साइज अप असाइन कर रहे हो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू हैव यूज्ड मैलॉक, इट इज अ लाइब्रेरी फंक्शन। फाइन। इससे प्रोग्राम पे कई बार कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वी हैव यूज्ड, आप एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है अगर आप इसको करते हो तो, ठीक है। तो आप मैलॉक में क्या बता रहे हो कि जितना भी साइज का वो नोड है वो आप पास कर दो ताकि उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाए, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन। तो उस पूरे ब्लॉक के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई। अब ये वाला पार्ट ध्यान से समझना, ये वाला पार्ट, ये समझ गए तो लिंक लिस्ट का कोई प्रोग्राम आपको दिक्कत नहीं देगा। ये दोनों, इसका क्या मतलब है, आपने देखा होगा कि जब मैं क्लास बुक नोट्स में जब आपको पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं ऐसे एक साइन देता हूँ जो एरो बन जाता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, टेम्प जो वेरिएबल है, फिर एक हाइफन और ये ग्रेटर देन साइन, इसका ये मतलब है टेम्प के नेक्स्ट में, इसका क्या मतलब है, टेम्प के नेक्स्ट में असाइन करो करंट का नेक्स्ट, इसका ये मतलब है। टेम्प के नेक्स्ट नेक्स्ट में डाल दो करंट, जो आपने नोड लिया है उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो डाल दो आप करंट में, और करंट के नेक्स्ट में टेम्प डाल दो। स्वैपिंग हो गई, एलिमेंट इंसर्ट हो गया। तो कहीं से कोई दिक्कत यहां तक किसी भी बच्चे को? एक बार मैंने ये ड्राइंग क्लियर कर दी है, इसके कारण जो है आपको ये समझ में आएगा कि बेसिकली ये वाला पार्ट कर क्या रहा है, ठीक है। जो आपको नोड असाइन करना है और नोड की जो वैल्यू देनी है वो एग्जैक्टली करता क्या है, ये आपको समझना है। तो यहां तक किसी बच्चे का कोई इश्यू है, प्लीज लेट मी नो। देयर इज अ क्वेश्चन, सर करंट नेक्स्ट टाइम पहले नहीं आना चाहिए था। गौरव, काय को पहले आएगा जब इंसर्शन हम बाद में कर रहे हैं, तो करंट के नेक्स्ट में टेम्प डाल दो, पहले डाल दोगे तो पहले डाल के आप चला के देखना क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। जब आप वापस चलो, मेरे ख्याल से थोड़ा इश्यू होएगा, मैं इसको पहले क्लियर करता हूं। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो गौरव, अब देखो ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपने टेम्प देख लिया, करंट देख लिया, ठीक है गौरव, टेम्प देख लिया, करंट देख लिया। अब आओ इसमें, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में करंट का नेक्स्ट जो है वो असाइन करना है अपने को। अभी समझ में आया? वापस जो है ये वाला स्लाइड देखो वापस, करंट के टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में, मतलब ये लिया था ना तुमने टेम्प, ये देखो ऐसे समझना, लिख के कॉपी ले लो, कॉपी पेन, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में करंट का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, गॉट इट। अब यहां पे मैं क्लियर करता हूं इसको, अब वापस आते हैं हम एल्गोरिदम पे।
सारे बच्चे समझ रहे हैं हाउ इट इज परफॉर्मिंग? टेम्प के नेक्स्ट में, नेक्स्ट हमेशा क्या काम करता है? सबसे पहले आप ये रिकॉल करो कि नेक्स्ट हमेशा एड्रेस को होल्ड करता है, तो वो कभी भी कोई डेटा होल्ड नहीं करेगा। तो टेम्प वाला जो शुरू में आपने लिया था ना, बस उसको, उसमें आप करंट डेटा जो इंसर्ट करना है उसका नेक्स्ट डाल दो। इट इज एज सिंपल एज दैट। टेम्प तो आपने सिर्फ इसलिए लिया है कि जब तुम स्वैपिंग करते थे तो एक वेरिएबल अपने को चाहिए होता था ना, बस। टेम्प का और कोई काम नहीं है। अब करंट के नेक्स्ट में, करंट के नेक्स्ट में, जो करंट के आपने नेक्स्ट लिया उसमें आप जो है वो टेम्पररी वेरिएबल डाल दो, यानी कि सी वाला डेटा। तो सी जो है वो आ जाएगा बी से कनेक्टेड, बी जो आ जाएगा वो हो जाएगा जो नया इंसर्टेड एलिमेंट है उससे कनेक्टेड, और ए जो है इट विल बी रिमेन एज फर्स्ट एलिमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? अब बताओ किसी बच्चे को कोई इशू? ठीक है, तो शुड वी मूव टुवर्ड डिलीशन पार्ट? इंसर्शन में किसी बच्चे को एक जरा भी डाउट है तो बताओ, क्योंकि ये बेसिक क्लियर हो गया ना, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, ट्रस्ट में। इस वाले में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मतलब सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं। अब देखो, ओके चिराग, थैंक यू। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं डिलीशन में। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि बेसिकली फंडा क्या है लिंक लिस्ट का। जैसे ही आपको समझ में आ गया कि इसका फंडा क्या है, तो अब आप क्या करोगे? आराम से डिलीशन ऑपरेशन भी कर लोगे। सेम लिंक लिस्ट, सही है, हमारे पास सेम लिंक लिस्ट है। नाउ व्हाट वी विल डू, आइटम टू बी डिलीटेड बी, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट वी विल डू, वी विल टेक ए and we will declare it as current element. Fine, because when we will delete b, सबसे पहले आप ये देखो, b को जैसे ही डिलीट करोगे, ठीक है, सपोज करो कि आप 3 बंदे अपना प्रोजेक्ट का वाइवा देने आए हो मेरे पास। एक बंदा जो है वो किसी वजह से आज एब्सेंट है, तो देयर विल बी 2 स्टूडेंट्स ओनली, सो ए एंड सी विल बी कनेक्टेड कि सर क्या पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, ऐसे कुछ है ना नॉर्मली। तो सिमिलरली अगर आइटम टू बी डिलीटेड, अगर ये आइटम डिलीट होगा, इसका नाम है बी, ठीक है, तो इसका सीधा मतलब है कि जो करंट एलिमेंट है उसमें आप ए को डाल दो। इस पे कुछ परफॉर्म करते हैं, फिर देखते हैं कि हाउ इट इज गेटिंग डन। फाइन, सो व्हाट विल हैपन, वी हैव टू बाइफर्केट ए एंड सी, क्योंकि बी तो आया ही नहीं है और मेरे को बी को फेल करना है ना, शुभ शुभ भी बोल सकते हैं। तो सपोज करो कि वो आया ही नहीं है, फेल नहीं करना अपने को, ठीक है। अब टेम्प वेरिएबल लिया, करंट और टेम्प का आपको कंसेप्ट बिल्कुल पता है, व्हाई वी आर यूजिंग इट फॉर स्वैपिंग पर्पस ओनली। अब टेम्पररी में आपने बी डाल दिया जिसको आपको डिलीट करना था। पहले आपने टेम्पररी के अंदर किसको डाला था? जिसको आपको इंसर्ट करना था, ठीक है। नाउ ए के नेक्स्ट में सबसे पहले जो ए का नेक्स्ट है उसमें बी का एड्रेस था, ए के नेक्स्ट वाले पार्ट में बी का एड्रेस था। अब अभी क्या करा इसने, एक बी ले लिया है जिसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं दिखाई है, ये ऐसे भी डिलीट होगा, तो इट विल बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सी। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, it will get disconnected from C. So what will happen now कि it will get deleted and it will get updated. Fine, और A और C आपस में connected हो जाएंगे. So what we are doing basically here, sorry, सारे क्लियर करता हूं और ये वाला पार्ट लेते हैं। What will happen now? Our motive was to connect A and C, ताकि B का जो टास्क होगा प्रोजेक्ट वाइवा में वो ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, and this particular node will get deleted. सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में चलो, यहाँ पे क्लियर और ड्राइंग करा और we will move toward the next slide. So next slide will tell you exactly how insertion was performed before and how deletion will be performed. So this is for you. So what we have to focus on now, everything has been clear to you, I guess. Fine.
So you need to concentrate on logics only. So what logics you need to concentrate on? Just have a look. एक बार इसको अच्छे से देख लो. Then I'll ask question from you. फाइन. तो इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? कि आपने नोड डॉट टेम्प को जो है ना ये लिया हुआ है, इट इज मूविंग बाय इटसेल्फ. नोड डॉट नहीं है वो एक्चुअली नोड स्टेरिक टेम्प, यानी कि नोड वाले पार्ट में टेम्पररी वाला पार्ट आपने लिया हुआ है, यानी कि नोड पॉइंटर जो है वो टेम्पररी को असाइन किया हुआ है या उसको वो रिप्रेजेंट करेगा. सो माय पॉइंट इज टू फोकस ऑन द लास्ट एंड सेकंड लास्ट पॉइंट. ठीक है. और जो सबसे नीचे आप फ्री टीएमपी देख रहे हो, जब आप इंसर्शन कर रहे थे then you were used malloc, यानी मेमोरी को allocate कर रहे थे. when you are deleting it you are freeing the space. so what temporary variable is having, when temporary variable is deleted there is no point to keep that particular space in it. Fine. So we will free that temporary variable space. So that's what we are doing in the very last line. Before that, if you are seeing node steric temp, नोड पॉइंटर टेम्प जो है आपने डिक्लेयर करा, आपने इससे पहले कहीं डिक्लेयर नहीं करा था. आपने एक फंक्शन यूज करा है नोड स्टेरिक करंट. फाइन. नाउ व्हाट यू आर डूइंग, पहले वाला तो ऊपर वाला तो सारा हेडर वगैरह सब सेम है. टेम्पररी के अंदर करंट का नेक्स्ट वाला पार्ट असाइन कर दो. टेम्पररी के अंदर करंट का नेक्स्ट वाला, टेम्पररी के अंदर करंट का नेक्स्ट वाला, ये तो है पहले से ही है. ठीक है. अब क्या होगा, करंट के नेक्स्ट में टेम्पररी का नेक्स्ट, करंट के नेक्स्ट में टेम्पररी जो बी डिलीट होने पे आया है, टेम्पररी कौन सा होगा ये, तो इसका वैल्यू आ जाएगा. ठीक है. तो करंट के नेक्स्ट में टेम्पररी का नेक्स्ट डाल दो. अब ए और सी आपस में कनेक्टेड हो गए, दैट्स व्हाई. फाइन. तो बेसिकली वी हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स, these only. और फिर जब लास्ट में हमारा काम हो गया डिलीशन का, तो हम स्पेस को फ्री कर देंगे. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड स्टेरिक साइन, दिस इज कॉल्ड नोड स्टेरिक टेम्प. यहाँ पे आपने डिक्लेयर करा. ठीक है. यहाँ पे आपने एक नोड बनाया एनडी, जिसका नेक्स्ट पार्ट डिक्लेयर करा है, एक आइटम बनाया है डेटा आइटम, और एक नोड जो है आपने डिक्लेयर करा. नाउ यू आर यूजिंग दिस वेरिएबल. सो दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन. ठीक है. दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन. ठीक है. अब यहाँ पे आपने जैसे ही फंक्शन डिक्लेयर करा, ये सारी चीजें परफॉर्म होने लगी. तो फटाफट बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, डिलीशन ऑपरेशन तक, किसी भी बच्चे को? फाइन. शुड वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट? So in essence, for insertion and for deletion, what we are doing basically is that we will see into it. So पहला पॉइंट क्या होगा? A record is created holding the new item. Agree? A record is created holding the new item. Basically creation ही होगा. तो creation होगा, नया item आएगा, definitely a record will be created. It is very much related to real time system. Fine, Himanshu. So अब देखो next point. The next pointer of the new record is set to link to the item which is follow it in the list. Getting my point? Very easy. नेक्स्ट वाला पार्ट किसको असाइन करता है? नेक्स्ट वाला पार्ट हमेशा आपने देखा कि नेक्स्ट वाले एलिमेंट को करता है, उसके वैल्यू को होल्ड करता है. तो नेक्स्ट पॉइंटर का ये काम होता है. तीसरा इसका समरी, द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द आइटम विच इज टू प्रीसीड इट मस्ट बी मॉडिफाइड टू पॉइंट टू न्यू आइटम. जैसे करंट और टेम्पररी वेरिएबल जो आपने लिया है, वो हमेशा क्या काम करता है? वो हमेशा अपने आप को मॉडिफाई करता है. एवरी टाइम यू आर डूइंग इंसर्शन, every time you are doing deletion, they will modify itself
ताकि वो नेक्स्ट वाले आइटम को पॉइंट कर सके. These are the 3 points which need to be considered while understanding linked list. So any issue यहाँ तक? यही summary है जो हमने पढ़ा है. Now deletion. The next pointer of the item immediately preceding the one to the deleted is altered to make the point of the following items to be deleted. यानी कि B delete हुआ है तो A और C आपस में connected हो गए. As simple as that. Fine. So this is the postulates or this is the summary what we have gone through with so far कि linked list में exactly हम करते क्या है. Linked list actually होता क्या है. Linked list से पहले क्या data structure का काम नहीं होता था. Problems थी, जो problems overcome हुई हैं वो discuss करा है. तो basically तुमसे कोई पूछे what is linked list, how to insert data and how to delete data into it and how it is getting worked, तो तुम point by point एक एक answer दे पाओ. That's my motive is. यहाँ तक कर लोगे, कोई पूछेगा तो exactly बता दोगे कि ये सारी चीजें हो रही हैं. ठीक है. When we have to jump to code question we will see it, but for now just concentrate on these points जो मैंने आपको बताया. So now बहुत important point है array versus linked list. Very important. तुम्हारा वो एग्जाम वैसा नहीं होता, नहीं तो ये 10 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन आता था जिसमें अपने को इसके पॉइंट्स अलग और इसके पॉइंट्स अलग लिखने होते थे. फाइन. सो दिस इज द आंसर फॉर यू. Inserting and deleting element at the end. Fine. In the middle it is possible but little complex. I have let you see how it is done and you have done this also in code question. Second point, randomly accessing any element. क्योंकि sequential search था तो आप कहीं पे भी कर सकते हो. Searching the list for a particular value. For example, we have to find some element in the matrix. Fine. We have to find some element in the matrix. So we have to pass that address and we have to get that value. So we have to search for particular value when we are doing array part. Now what is linked list is all about? It will insert an element like array. It will delete an element like array, but in a dynamic manner. Memory allocation in a dynamic manner. Memory free in a very dynamic manner. The third thing is application where sequential access is required. The applications where sequential access is required. Basically ये भी sequentially चल रहा है. First node जो है उसमें address है second node का, second node में third node का. First node से अभी third node पे नहीं जा सकते जब तक उसका address पता नहीं चलेगा. Basically अभी तक जितना पढ़ा है हम यही है. आगे देखेंगे कोई dynamic चीजें आएंगी तो. So in situations where number of elements cannot be predicted beforehand. आई बात समझ में? जैसे मान लो मैंने कोई नाम टाइप करा. मेरे को पता था कि ये नाम जो है जैसे रोहन, सो इट विल टेक 5 कैरेक्टर्स, बट आई डिडंट नो कि ये रोहन कुमार है इसका पूरा नाम. सो वी नीड टू हैव 5 मोर कैरेक्टर्स फॉर इट. सो पहले से चीजें प्री डिफाइंड नहीं है. तो in the middle of the program you need to change or you need to free a space or you need to allocate new space. So array is never preferred in that case. In that case only linked list can be preferred or a stack or queue can be preferred, but we have not gone through with the stack and queue, so we will focus on linked list. So linked list is basically dynamic memory allocation. Fine. So now there is a type of list. So depending on the way in which links are used to maintain adjacency, like adjacent elements like that, several different types of linked list are possible. ठीक है. डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक लिस्ट जो है वो पॉसिबल है अगर आप ऐसा कुछ परफॉर्म करना चाहते हो. तो वी विल सी इट वन बाय वन. सो द फर्स्ट वन इज लीनियर सिंगली लिंक लिस्ट और इट इज आल्सो कॉल्ड सिंपली लिंक लिस्ट. जो हमने डिस्कस करा है दैट इज सिंपली लिंक लिस्ट. ठीक है. जो हमने डिस्कस करा है वो है सिंपली लिंक लिस्ट. यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो ये है तुम्हारा सिंपल लिंक लिस्ट. सही है. दिस इज योर सिंगल लिंक लिस्ट. सो हाउ इट इज गेटिंग डन, it could be like A, B, C are 3 nodes and
the first node is constructed, and the second node is constructed and getting connected with A, the third node is constructed and getting connected with B, and the C is pointed to null. That means it is the end of that particular linked list. कोई दिक्कत सिंगल लिंक लिस्ट में? It is also called linearly singly linked list or simple linked list. Then there is a very important circular linked list. वो भी आप देखोगे. अभी सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, वो हम देखते हैं. So the pointer from the last element is list to pointer back to the first element. Getting my point? देखो ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला. इसमें बेसिकली आपको क्या समझना है कि C जो है it will point to null. C जो है it will point to null. So in circular linked list C जो है it will hold the address of A, क्योंकि ये सर्कल बना हुआ है, never ending process है. So in the middle of the execution anything can be inserted, so we can never say that it is the end of the linked list. So the end is the start point, because the end is having the address of the start point. इसमें किसी को कोई दिक्कत है कि the C will have the address of A, so if A has been deleted also, ठीक है, ये देखो कोई दिक्कत? जो इसका लास्ट एलिमेंट है वो उसके हेड नोड से जाके मिल जाता है, एंड सो दैट it is never ending process. Fine. So if even if A is deleted and new A is inserted, it can be inserted at any point of time. ये हम बाद में देखेंगे, अभी बस इतना समझ लो. The pointer from the last element list to the point back to the first element. So this is the basic concept. So I guess there is a question. Okay. ठीक है, अब ये समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत है तो बताओ. यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज बताइए. You can ask your question. अभी कुछ मत सोचना कि ये प्रोग्राम कैसे होगा नहीं होगा, वो that we will see it when we use this circular linked list. गौरव, अभी बताया मैंने कि जब मान लो कि तुमको एरे को एंड नहीं करना है, सॉरी लिंक लिस्ट को एंड नहीं करना है, और अभी तुमको ये लिंक लिस्ट चल रहा था, एग्जीक्यूट हो गया, सी तक काम हो चुका था अपना, फिर आपको अचानक से क्लाइंट का मैसेज आया कि वी नीड टू इंसर्ट वन मोर पर्सन और वी नीड टू इंसर्ट वन मोर नोड, सो यू हैव टू इंसर्ट अ नोड व्हिच हैज बीन डिलीटेड बिफोर. जैसे मान लो ए जो है वो डिलीट हो चुका था, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर वो डिलीटेड नोड ए है और उसका स्पेस खाली नहीं छोड़ा है हमने, तो उस ए की जगह पे आप 10 की जगह 10 डिलीट हो चुका है तो 15 इंसर्ट कर सकते हो. बेसिकली ये फायदा है. सर्कुलर क्यू में भी यही हाल होता है, वो हम बाद में देखेंगे. ठीक है गौरव, समझ में आया? और कोई क्वेश्चन? Sir, if we have linked list of size 1, then next pointer will, the next part of the node will have null. Yeah, if we are having size 1, तो next part जो होगा वो null को ही करेगा. शिता, फाइन, क्योंकि वहां पे आपको पता चल जाएगा कि this is a node and this is the last node. We have to terminate our program over here only, so we need to represent it in that way. Any other question? Please ask without any hesitation. यहाँ तक कोई भी दिक्कत? मंजोत, समझ में आ रहा है? जस्ट कमेंट थ्रेड में मैसेज करो. मंजोत, आयुष, मुकुल, अभिनव, everything is clear to all of you? Just answer in the comment thread.
I have got the answer from Manjot. Anush. You guys are, lost. Okay, Anuj. Thank you. अभिनव, अभिमन्यु. फाइन. चलो तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. बस यहाँ तक आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए ताकि तुम किसी भी प्रोग्राम पे जंप कर सको. ठीक है, मेरा मोटिव यही है. ओके मुकुल. ओके अभिमन्यु. थैंक यू. रिस्पॉन्ड किया करो. सी, ये तो हो गया सर्कुलर. अब है डबली लिंक लिस्ट. ठीक है, अभी सिर्फ इसका बेसिक जानना, इसके टर्मिनोलॉजी और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. पहले सिंगल लिंक लिस्ट का पूरा प्रोग्राम बनाएंगे हम, है ना. यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन और द कोड क्वेश्चन आल्सो. सो अभी बस इसका बेसिक जानना कि ये होता क्या है. पॉइंटर एग्जिस्ट बिटवीन एडजेसेंट नोड इन बोथ डायरेक्शन. डबली मतलब इन बोथ डायरेक्शन चलेगा. सर्कुलर मतलब कि जो उसका लास्ट पॉइंट है इट विल मीट टू इट फर्स्ट पॉइंट. सर्कल में, सर्कल जो होता था उसके अंदर क्या होता था, जो फर्स्ट पॉइंट है जहां से हमने इनिशिएट किया है वहां पे लास्ट पॉइंट जाकर मिलता था. सो इट कुड बी लाइक इवन इफ वी आर पेनिंग इट डाउन अगेन एंड अगेन, it will never ending process. It is like cycle. Getting my point? So in double linked list what will happen, adjacent node जो होंगे उसके बीच में पॉइंटर एग्जिस्ट करेगा और वो पॉइंटर दोनों तरफ डायरेक्ट करेगा. हाउ? लेट्स सी. The list can be traversed either in forward or backward direction. देखो कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है. अभी तुम कैसे चल रहे थे, लेफ्ट से राइट. जस्ट सी इन द एग्जांपल, लेफ्ट से राइट. सही है, हेड नोड से लास्ट नोड की तरफ. अब कैसे चलोगे? इट कैन बी ट्रैवर्स्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आल्सो. सो यूजुअली बेसिकली यू two pointers are maintained to keep track of head and tail. Fine. So two pointers are maintained. एक जो है वो डेटा नेक्स्ट और फिर प्रीवियस. डेटा नेक्स्ट प्रीवियस यानी कि प्रीवियस एलिमेंट का भी डेटा जो है वो होल्ड करेगा और नेक्स्ट एलिमेंट का भी करेगा. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ इट विल बी क्लियर फ्रॉम दिस एग्जांपल. अब इसको आप लोग खुद एनालाइज करो, देन आई विल कम टू यू. I'm very much here, but analyze it yourself. You are having 2 minutes, so just go through with it once. अगर मान लो C से आप ट्रैवर्सिंग करना शुरू करते हो तब भी पॉसिबल है, A से ट्रैवर्सिंग करना शुरू करते हो तब भी पॉसिबल है. सिंगल लिंक लिस्ट में क्या था, जिसके पास जिसका एड्रेस है वही बता पाएगा. अगर मैं हिमांशु से पूछूं कि जो अभी बच्चे इंटीग्रेटेड से आए हैं, वर्चुसा से आए हैं, तो ही और she may not be familiar with them. Fine. So they don't have the address, they don't have the location. So what is happening? A, B और C. पहले कैसे हम मूव करते थे? Right from A to C, from A to B to C. Now what will be done? A will hold the address. A is the head node. So A will hold the address of the previous. ठीक है? देखो बहुत अच्छी चीज बताता हूँ इसमें जो आपको कभी भूलोगे नहीं. ये वाला पार्ट जो है इसमें आप हमेशा लिख देना प्रीवियस. हाँ बेसिकली हिमांशु पहले तो नल ही होगा, कुछ नहीं होगा तो, और ये वाला पार्ट में हमेशा नेक्स्ट होएगा. तो अभी जो ये नेक्स्ट है वो किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है? बी का. और बी का जो प्रीवियस है वो किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है? देख रहे हो, बी का जो प्रीवियस है वो एड्रेस होल्ड कर रहा है ए का. बी का जो नेक्स्ट है वो एड्रेस होल्ड कर रहा है सी का. सी का जो प्रीवियस है वो एड्रेस होल्ड कर रहा है बी का. प्रीवियस और नेक्स्ट, बस काम खत्म. सी का जो नेक्स्ट है वो सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरह कहीं किसी से जुड़ा नहीं हुआ है, बट बोथ आर बाई डायरेक्शनल. सो इट इज बाइलेटरल. कि अगर कुछ ऐसे डायनेमिकली ऐड होता है वी विल सी टू इट. यहां तक
सभी का कंसेप्ट क्लियर है? अगर कॉपी पे कोई बोले बना के बता दो तो बता दोगे? इंटरेस्टिंग है ना? इसको कॉपी पे बनाओगे तो और ज्यादा मजा आएगा। डीएसए का जो प्रोग्राम होता है वो तो आप हमेशा जेडीके वगैरह या हमने सी में करा था, सी प्लस प्लस में करा था, लेकिन इसके जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे जो गेट में क्वेश्चंस आते हैं या जो तुम्हारे टीसीएस विप्रो जहां पे भी बैठोगे वहां पे क्वेश्चंस आएंगे, वो मोस्टली कॉपी में करके आपको पता लग जाएगा कि ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ज्यादा ऑपरेशन इसके इसके जो एग्जाम होते थे उसमें मोस्टली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, जिसमें आपको आंसर पूरा लाइन बाय लाइन लिखना है कि कैसे डबल लिंक लिस्ट काम करता है, पूरा समझाओ, उसका एल्गोरिदम लिखो। तो अभी मान लो आपको डबल लिंक लिस्ट पता है, तो ये तीनों पॉइंट मिला के उसका एक एल्गोरिदम लिख देंगे। आई बात समझ में? और उस पर आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएगा। देयर इज नथिंग लाइक रटिफिकेशन, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। एंड यू कैन, आई मीन, वन स्टूडेंट कैन राइट इन हिज ओन वे, other student can write in his or her own way. Fine. So it is the efficiency of this subject. So I'm clearing the data. अब यहाँ तक डबल लिंक लिस्ट में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब आपसे कोई मैक्सिमम अभी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है पता है? What is linked list? How many types of linked list are there? So there is a single linked list, there is double linked list, and there is circular linked list. What we have gone through with. So these three linked lists we are having, and we have performed insertion operation in single linked list, deletion operation in single linked list. That's what we have done for today. अभी तक यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम? I'm waiting for your answers. I'm waiting for your questions actually. If there is no question, I'll move to, I mean, next step, next topic. Is there any? There are 9 questions. No. Any question? आगे चलें? चलिए। बेसिक ऑपरेशन ऑन अ लिस्ट। ठीक है, बेसिक ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं लिस्ट के अंदर? क्रिएटिंग अ लिस्ट, एग्री करते हो? ट्रैवर्सिंग द लिस्ट, सिर्फ आपको विजिट करना है सारे नोट्स पे। सो ट्रैवर्सिंग द लिस्ट, इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन और आइटम इन द लिस्ट, चलेगा? डिलीटिंग, कॉन्कैटिनेटिंग टू लिस्ट इनटू वन, 2 लिंक लिस्ट को जोड़ दो, एक बना दो। अगर मैं बोलूं कि आप कोई भी रूल को फॉलो मत करो, ठीक है, और 2 लिंक लिस्ट को जोड़ के एक बना दो, तो आप उसके लास्ट एलिमेंट में जहां नल है वहां पे क्या करोगे? नल की जगह पे नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट वाला जो है उसके हेड वाला पोजीशन को होल्ड करेगा, एंड सडनली दे विल मर्ज लाइक अ सिंगल एरे और सिंगल लिंक लिस्ट। ऐसे ही करोगे ना? तो सिंपली देख रहे हो हाउ रियल टाइम सिस्टम इज गेटिंग इनटू प्रोग्राम। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाई वी आर स्टडीइंग डेटा स्ट्रक्चर। फाइन। सो द पॉइंट इज कि आपने सी पढ़ रखी है, पाइथन पढ़ रखी है, जावा, कोर जावा कर रखा है, एंड नाउ यू आर डूइंग डीएसए विद Java, right? So why we are doing it basically? So even if your Excel file, we are sorting it, we are searching some name कि ये 70 बच्चे में से मेरे को मान लो किसी का नाम चाहिए XYZ, तो हमने उसका नाम सर्च करा, तो सर्चिंग ऑपरेशन, वो सारे जो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है वो सारे ऐसे ऑपरेशंस करके, गूगल जो है, गूगल सर्च हम करते हैं, जो एल्गोरिदम्स वो रैंडमली बनाता है। सपोज यू आर सर्चिंग चितकारा यूनिवर्सिटी, so it will give 2 results, Chitkara University Rajpur and Chitkara University Padi campus. So how it is getting done? These all are data structure, these all are searching sorting operations, these all are algorithms. इसीलिए जो एल्गोरिदम डेवलपर है उसको गूगल इतना पे करता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। जब तुम पाओगे उन चीजों को तब तुम सोचोगे। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि एल्गोरिदम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंप्यूटर साइंस। सपोज you want to communicate with devices, you want to communicate with machines, तुमको अगर एसी से बात करना है, एयर कंडीशन, या फिर फैन से बात करना है, how you will do that? How you will start conversation with them? You have only one way, स्विच को ऑन करो या ऑफ करो। ये किसने बनाया? ये कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ही बनाया। राजपुरा के अंदर एक ब्लॉक है जिसका नाम है ट्यूरिंग। ठीक है, ट्यूरिंग ब्लॉक। ठीक है, वो एलन ट्यूरिंग कंप्यूटर साइंटिस्ट था। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया 1949 में,
और वो 12 साल पहले बता दिया कि 12 साल के बाद जो है एक ऐसा डिवाइस बनेगा विच विल सॉल्व एनी प्रॉब्लम लाइक इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। सो जैसे नोबेल प्राइज होता है सारे क्षेत्र में, वैसे ही कंप्यूटर साइंस में अगर कुछ अच्छा करो तो उसका जो नोबेल प्राइज है वो है ट्यूरिंग अवार्ड। फाइन, जिसने आपको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा बनाया है, जिसने आपको एनएलपी बनाया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बनाया। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, we are making these things what machines can do but humans cannot, what machine can do but human cannot. We are trying to make a computer, we are trying to make a human, but human cannot do that, machines can do that. अब आप ये बोलोगे सर ये कैसे, तो मैंने आपको बताया था जो नंबर 5 नंबर मैंने आपको सॉर्टिंग के लिए दिया था वो तो बड़ा आसान था, कोई भी कर सकता है। तो मैंने बोला था उसके लिए एल्गोरिदम कभी यूज नहीं करोगे। जहां पे ह्यूमन कैपेबिलिटी फेल हो जाएगी, फॉर एग्जांपल यू हैव टू सॉर्ट 500, 5000, 5 मिलियन, 5 ट्रिलियन नंबर sorted in a very arranged way, so now you have to follow some algorithm. ठीक है, so it is very much connected to real time system. That's why we enjoyed a lot while studying it. ठीक है, now there is a concept called abstract data type. अभी तो आपने बेसिक वो चीजें समझी हैं, अब आप समझोगे what is abstract data type. So it is a data type defined by the user only. Fine. So typically more complex than simple data type like int, float, like that. So why abstract? The details of implementation अगर hidden होएगा, आपने पढ़ा होएगा जब हमने कोर जावा पढ़ा था, the details of implementation अगर hidden होएगा उस लैंग्वेज को ज्यादा सिक्योर करने के लिए, ठीक है। तो कभी भी आप देखना जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आपने बनाया हुआ है उसकी कोई बॉडी नहीं होगी। बॉडी नहीं होने का क्या मतलब है, उसका इंप्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास के थ्रू आप करवाते हो और उसके जो इंप्लीमेंटेशन है उसको हाइड रखते हो चाइल्ड क्लास में। दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच सिक्योरिटी ओरिएंटेड, सो इट इज वेरी मच सिक्योर। सो द सेकंड पॉइंट इज व्हेन यू डू सम ऑपरेशन ऑन लिस्ट, इंसर्ट एन एलिमेंट, यू जस्ट कॉल अ फंक्शन कि insert ऑपरेशन को कॉल किया और insert हो गया। Then there is a detail of how the list will be implemented, how insert function is written is no longer required. आपने एक abstract type बनाया, उसके अंदर आपने किसी मेथड को कॉल ही नहीं किया क्योंकि वो कोई रिटर्न करता ही नहीं है। abstract कभी भी जो है वो abstract class, उसका रिटर्न कुछ भी नहीं होता, उसकी बॉडी ही नहीं होती। आपने देखा होगा कर्ली ब्रेसेस हमेशा ब्लैंक होते हैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस के, क्योंकि उसके अंदर कुछ इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। हम उसका इंप्लीमेंटेशन उसके चाइल्ड क्लास में करते हैं टू मेक इट सेफ एंड टू मेक इट सिक्योर। तो बेसिकली जो आपने कोड जावा में पढ़ा था उससे ये चीजें कहीं अलग नहीं है, विद द सेम कंसेप्ट वी आर हैविंग। सो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सही है। अब यहाँ पे है कंसेप्चुअल आइडिया, लिंक लिस्ट का जो इंप्लीमेंटेशन है और रिलेटेड फंक्शन है। सो बेसिकली वी आर हैविंग थ्री काइंड ऑफ ऑपरेशंस। फाइन, so basically we are having three kinds of operation when we are dealing with the linked list and related functions. So the first one is insertion, the second one is deletion, and the third one is traversing. Only we have to traverse from one node to other node, one node to other node, and like that. यहां तक किसी को कोई इशू? तो ऐसे आपको ये हमेशा के लिए याद हो सकता है, आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। So how we can work with the linked list? This is very important. So this is the example you are having. So how it is getting done, just have a look. ठीक है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करा ना हमने। अब स्ट्रक्ट स्टड नाम जो है उसका जो है नेक्स्ट वाला पार्ट आपने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। So a user defined data type called node, user defined data type called node,
and type def struct stud node and node into head. So इसके just बाद type definition struct stud node और node static head, यानी कि node का जो head part है आपने उसको declare कर दिया. So it can be done like this. इसमें किसी को भी कोई कुछ पूछना है? जो लास्ट हमने प्रोग्राम में करा था अभी लिंक लिस्ट के, वही यहाँ पे भी करा है. Any issue in this particular slide, in any point of line, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? Please ask if you are having any kind of issue. Waiting for your answers. समझ में आ रहा है यहाँ तक सारे बच्चों को? Okay. Apart from Himanshu, anyone जिसको दिक्कत है, please answer. स्ट्रक्ट ऐसे ही नाम दे दिया भाई गौरव, क्वेश्चन करोगे समझ में आएगा. डेटा स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे स्ट्रक्ट नाम दे दिया. और भी एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊंगा जब ये समझ में आएगा. मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ गौरव. योर पॉइंट इज नोटेड, फाइन. मैं भी बताऊंगा तुमको कि हाउ वी विल प्रोसीड दैट. I'll take a simple example without using struct. We will do that. Apart from Gaurav, anyone is having any issue? कोई और? 60-65 बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है? चलो. So how to begin? Gaurav, I will get to your point and we'll discuss that how we will proceed with it without struct also. Fine. So we will tell you that. So just have a look over it and then we will do that. So to start with, we have to create a node जो कि पहला नोड होगा, जो कि इशिता ने पूछा था अगर एक ही नोड होगा तो क्या करेंगे. ठीक है चिराग, सिंटेक्स अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ? क्या दिक्कत है इसमें? आपको सी आपने पढ़ी है? अब देखो, आपने एक क्लास बनाया, क्लास में जो उस क्लास का नाम आपने रखा है स्ट्रक्चर. ठीक है, आपने उसका नाम रखा स्टड. स्टूडेंट जो है उस क्लास का नाम रखा. ठीक है, और आपने क्लास टेस्ट जैसे यूज करते थे वैसे ही आप यहाँ पे स्ट्रक्ट यूज करोगे, बिकॉज यू आर स्ट्रक्चरिंग अ थिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ अ नोड यू आर मेकिंग. दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग स्ट्रक्ट स्टड. दैट्स द बेसिक पॉइंट इज. फाइन. नाउ जब यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर बना लिया तो आप वो सारी चीजें देते हो जो आपको जरूरत है उस नोड बनाने के लिए. सो बेसिकली मैं समझ गया हूँ आप इस वाले पॉइंट में पूछ रहे होंगे. कि जब आपने यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट बनाया, इंट रोल, कैरेक्टर नेम, इंट एज, और फिर यहाँ पे आपने स्ट्रक्ट स्टूडेंट का जो है नेक्स्ट पॉइंटर जो है नेक्स्ट पार्ट उसको भी आपने यहाँ पे डिक्लेयर करा. जैसे ही आपने इसको डिक्लेयर करा ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा. ठीक है, बेसिकली ऐसे हम C++ में या फिर स्ट्रक्चर जब सी के अंदर बनाते थे उसमें करते थे. ठीक है, जब इस वाले प्रोग्राम में आएंगे तो हम इस वाले प्रोग्राम में भी यही करते हैं. सपोज करो कि स्ट्रक्चर और क्लास सेम चीज होता है, क्लास टेस्ट स्ट्रक्ट स्टड. अब समझ में आया चिराग और गौरव? क्लास टेस्ट स्ट्रक्ट और स्टड. क्लियर? ओके चिराग, प्लीज आंसर सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड. यहां तक दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, इसी में मैं नेक्स्ट लाइन पे आ रहा हूँ. चिराग, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया? अब इस क्लास के अंदर तुमने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए. ये सारे वेरिएबल्स तुमको पता है, वी आर फेमिलियर टू दीज वेरिएबल्स. अब देखो, यूजर डिफाइंड डेटा दैट आर कॉल्ड नोड. दिस इज अ यूजर डिफाइंड डेटा दैट इज नोड. तो आपने यहाँ पे टाइप डिफिनेशन स्ट्रक्ट स्टड के अंदर नोड को डिक्लेयर करा है. यानी कि ये जो क्लास टेस्ट है उसके अंदर आपने ये नोड को डिक्लेयर करा है, और नोड स्टेरिक हेड.
नोड के पास हमेशा एक ही है, इसके पास नोड है ना, तो उसका हेड तो होगा, so that is declared as head of the head node, you can say. Easy है अभी. Now you can connect it with the Java program you have been doing so far. Okay. और किसी बच्चे को कोई दिक्कत? Thanks for asking. जहां भी दिक्कत हो, क्लियर ना हो, छोटे छोटे पॉइंट पूछ लिया करो. आज पूछोगे, कल बड़े बड़े प्रोग्राम खुद ही बनाओगे, देखना. So to begin with, so these we have gone through with. अपने को create करना है node, first node बनाना है. So make the head point to it. So what we are doing, head के अंदर assign कर दो वो node static. Head के अंदर assign कर दो वो node static. What is the static here? Node plus next pointer. Node plus next pointer. And then what is malloc is used for? For allocating the memory to of any size that node is holding. सही है. हेड नोड बनाया, एक नोड. अब वापस आओ इस प्रोग्राम पे. ये वाला प्रोग्राम अच्छे से देख लो. देख लिया? ये प्रोग्राम अच्छे से देख लिया, मतलब जो भी है ये स्ट्रक्चर जो बना है, सिंटेक्स. अब इसके बाद आओ इस पे. ये भी देख लिया. अब देखो, ये हेड बना जिसके अंदर रोल, नेम और एज आएगा. ठीक है, तो ये हेड होल्ड करेगा इन सारे इंफॉर्मेशंस को. सो बेसिकली दीज नोड्स आर पॉइंटर. आपसे बोलेगा कि ये नोड है क्या, बार बार नोड नोड आप यूज कर रहे हो. सो बेसिकली दीज नोड्स इन द लिंक लिस्ट आर पॉइंटर्स which hold the address of elements which has been declared, like roll number. तो आपको क्या करेगा, ये पॉइंटर रोल नंबर पे ले जाएगा. रोल नंबर पे जाओगे, देखोगे क्या स्टोर है, उस स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर है. फिर ये नोड आपको कहाँ ले जाएगा, पॉइंटर नेम पे. फिर आपको ये रोल नंबर कहाँ पे ले जाएगा, एज पे. So similarly, the nodes are pointer which tends to move you toward the value. Getting my point? यहाँ तक इस स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत? अब क्लियर हो रहा है? चिराग, गौरव, anyone else? अब देखो, ये वाला बेसिकली रोल नंबर होगा and the next part is common to everything. So the next node could be roll number, the next node could be name, the next node could be age, but it all will have next with it associated. यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. So if there are n number of nodes in the initial linked list, allocate n record one by one. कर पाओगे? Easy है. Read the fields of record. Easy है. Modify the link of record so that the chain is not harmed. Fine. Chain जो है वो टूटे नहीं. तो बेसिकली ये वाला प्रोग्राम देखो. अब चिराग और गौरव आराम से आप देखो. देखो कहीं स्ट्रक्ट वगैरह यूज नहीं हुआ है, आपको समझाने के लिए था. और ये सी का प्रोग्राम है, बट इट कैन बी डन इन C++ एंड जावा आल्सो. ये सी का प्रोग्राम था, दैट्स व्हाई इट वाज शोइंग ए स्ट्रक्चर. एक्चुअली हुआ क्या था कि जब सी में स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया था और चीजें फंसी थी, है ना. जब आप कभी सी पढ़ोगे, आई होप आपने नहीं पढ़ा है, उसमें चैप्टर था स्ट्रक्चर. वो बिल्कुल क्लास और ऑब्जेक्ट की तरह था. उसके बाद वहीं से C++ का आइडिया आया. ठीक है, क्योंकि वहां जो स्ट्रक्चर बना था एंड एवरीथिंग. सर व्हाट डज दिस इंडिकेट स्टैटिक साइट पॉइंटर बोल लो इसको. दिस इंडिकेट कि इस टाइप का जितना भी होगा नोड, वो सारे वहां पे इंसर्ट होंगे. मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ. रुक जाओ, मैं ये न्यूज शेयर करता हूँ. अब देखो कि स्टैटिक कैसे काम करता है. गौरव, स्टॉप शेयरिंग. अब जैसे मेरा ये माई कंप्यूटर में गया मैं, है ना, और यहाँ पे मैं डी में गया. अब देखो
यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ, ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे मैं अगर टाइप करता हूँ स्टेरिक डॉट जेपीईजी, देखो जितने भी जेपीजी इमेज है सारे आ गए। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ स्टेरिक डॉट पीडीएफ, जितने भी एक टाइप के फाइल हैं वो सारे आ गए। सो व्हाट स्टेरिक मीन्स, ठीक है, अब ये रियल टाइम एग्जांपल है। व्हाट स्टेरिक मीन्स, स्टेरिक मीन्स कि आपको उस जगह पे ले जाएगा जहां पे एक टाइप के सारे पॉइंटर अवेलेबल है। दैट्स द बेसिक पॉइंट इज फाइन। गौरव, समझ में आया? या नोड इज इनबिल्ट टाइप है। नोड जो है वो इनबिल्ट इस तरीके से नहीं, नोड को आपने ही डिफाइन करा है बच्चे, आपने नोड को आपने ही डिफाइन करा है, ठीक है, ये नोड आपने ही डिफाइन करा है, विच पॉइंट्स टू पी, हेड को आपने डिफाइन करा है, या यूजर डिफाइंड, ऑफ कोर्स nothing like node can be defined by system, ठीक है, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा। और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? ये देखो गौरव, मैलॉक फंक्शन जो है ना वो होता है मेमोरी एलोकेशन फंक्शन। ये है प्री डिफाइंड, it is not user defined, it is memory allocate function and we have used free space, याद होगा आपको पिछले वाले प्रोग्राम में, that is for to free the space which has been allocated। तो जब आप कभी कोई ब्लॉक को यूज करते हो तो उसके लिए कुछ मेमोरी आप अलोकेट करना चाहते हो, तो इट इज बेटर टू यूज, नॉट टू गेट गार्बेज वैल्यू आउट ऑफ इट, to use malloc and calloc function। So we have gone through with malloc once, तो आपने सी नहीं पढ़ा, that's why you don't have knowledge of that, so it's not your fault। memory allocation function, फाइन गौरव। और कुछ? anyone is having any doubt, any question? So basically to be called from main function as node pointer head equals to create list, so it could be like this fine। अब traversing, जब आप traverse करोगे Ishita, if we use and in C++ for address operator, then in Java C में यूज करते थे ना एम्परसेंट इशिता, C++ में नहीं। उस एंड की बात कर रहे हो जो एम्परसेंट एंड यूज करते थे, जो एड्रेस स्पेसिफायर होता था वहां पे अपने को ले जाता था, राइट, एड्रेस ऑपरेटर इशिता। Ishita, right, so we don't use that in Java because Java is very secure language and it has no pointer concept। कोर जावा में आपने पढ़ा होगा, तो अपने को एड्रेस स्पेसिफायर की जरूरत नहीं होती, अपन सिर्फ यहाँ पे सिस्टम आउट प्रिंटलन और सिस्टम इन से सिर्फ क्लास के थ्रू और पैकेज के थ्रू वहां पे मूव करते हैं। तो कभी भी ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए या किसी पॉइंट को रीच करने के लिए। दैट्स व्हाई जावा इज वेरी मच सिक्योर एंड इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आल्सो। फाइन इशिता। लेकिन अगर आप सिंगल एंड और डबल एंड की बात कर रहे हो इशिता, जिसमें यूज हो रहा है, बिकॉज दिस इज डेटा स्ट्रक्चर, फाइन, this is not pointer, this is not that pointer that we were used, this is called data structure। and ये by default अगर आप बनाते हो तो डेटा स्ट्रक्चर में वो नेक्स्ट का वैल्यू स्टोर करता है, इसलिए वो पॉइंट आपको बाय डिफॉल्ट मैनुअली ये चीजें बनानी पड़ती हैं जावा के अंदर। अदरवाइज मोस्टली इट इज परफॉर्म्ड इन C++ और सी, फाइन, ताकि आपकी चीजें सिक्योर रहे। यस, एनी अदर क्वेश्चन? And when we will use this asterisk sign Ishita, when we are jumping toward program, then you will see that we will, I mean mostly we will not use this kind of thing। we can try to not
use such type of operators in our program. Fine. So basically we have to clear lots of things. So we have used this with reference of C, C++ and Java ताकि comparison होता रहे. ठीक है. अभी प्रोग्रामिंग पे दिमाग मत लगाओ, जो प्रोग्रामिंग पे आएंगे we will see everything. Don't worry. और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? Any question from any student? No question. So let's move toward the traversing and linked list. Traversing a linked list. Fine. So when we are traversing a linked list, what will happen? So let's see. Once the linked list has been constructed, एक बार जब linked list हमारा बन गया, and head point, first node, ये सारी चीजें जो हैं वो declare हो गई. So follow the pointers. ठीक है. हो सकता है ये C के रेफरेंस में हम बात कर रहे हो या C++ के रेफरेंस में बात कर रहे हो, लेकिन बेसिकली पॉइंटर्स जो नेक्स्ट का एड्रेस होल्ड करते हैं उसको हम वैसे एरो देके दिखाते ही. दैट विल वी विल सी इन द प्रोग्राम. फाइन. सो डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द नोड एज दे आर ट्रैवर्स्ड. जो भी कंटेंट होगा जिसको हम ट्रैवर्स करेंगे, सपोज करो हम A, B और C में ट्रैवर्स कर रहे हैं फ्रॉम A to B and to C. So stop when next pointer points to null. ठीक है. ये आपका एंड पॉइंट है, ये आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट है, वहां पे आप टर्मिनेट कर दोगे. दैट इज द बेसिक पॉइंट ऑफ traversing. So basically you need not to follow this because we have to, this is in C. So now we have to look at that what is insertion. So इसमें क्या करेंगे? The problem is to insert before a specified node. तो आपने सबसे पहले यही परफॉर्म करा था. Specified means some value is given to that node. Fine. And then we will consider it to be the roll number. ठीक है. तो एक बार इसको देखो. ठीक है. तो अभी हम वापस इसको देखते हैं. ठीक है. मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ये पीपीटी. आप इसको वापस पढ़ के मेरे से वापस क्वेश्चन भी पूछ सकते हो. दिस इज ट्रैवर्सिंग वी वर हैविंग. इसमें सारा पॉइंटर का खेल है ना. इन Java we need not to follow that much pointer, and how we will do that we will see to it. Fine. So it is too early to say what we will use in that particular thing. तो ये वाला पार्ट हम पढ़ रहे थे. तो ये तो हमने पहले करा था. तो एज इट इज बस उसको शब्दों में भी रोया है. तो इफ द वैल्यू ऑफ roll is given as negative, the node will be inserted at the end of the list.
Fine. So when a node is added to the beginning, only one next pointer need to be modified. सही है? When node is added at the end, two next pointer need to be modified. सही है? When node is added in the middle, two next pointer is needed to be modified. इसमें कोई बच्चा ऐसा है जो मेरे से एग्री नहीं करता हो? कोई बच्चा ऐसा है जो इसमें मेरे से एग्री नहीं करता हो कि ये कैसे हुआ? जस्ट look at the 3 points and get back to your answers. This is a very good practice. फटाफट, waiting for your answers. अगर एंड में ऐड होएगा तो 2 पॉइंटर्स मॉडिफाई होंगे, एग्री करते हो? और मिडिल में तो होएगा, एंड में का सबको लॉजिक क्लियर है? So there is no answer. So let's move to the next point. Only one next pointer need to be modified. तो head को जो है वो पॉइंट बनाएंगे न्यू नोड का, और न्यू नोड पॉइंट जो प्रीवियसली एलिमेंट को कंटेन करेगा, that would be the first element. So this is for beginning में जब ऐड करेंगे. अब जब नेक्स्ट में ऐड करेंगे, so the last node now points to new node. Last node now points to new node. New node points to null. सही है? और इस वाले केस में previous node now points to new node and new node points to next. Fine. So ये आपके साथ में शेयर करूंगा, तब आप ये एग्जांपल देखना करके, if you are okay with C. Otherwise we will do it in Java जब हम इसको प्रोग्राम करेंगे. डिलीटिंग में सेम वही चीज, फर्स्ट नोड, लास्ट नोड और इंटरमीडिएट नोड. इसमें भी क्या चेंजेस आएंगे वो हमने देख लिया. सो नाउ देयर इज अ कॉन्कैटेनेट एंड ये सारी चीजें ये क्यू पे आ गए. ठीक है, इसमें क्यू का भी है. तो आप बस लिंक लिस्ट तक इसको पढ़ना, कोई दिक्कत होगी तो मेरे को बताना. सो वी आर हैविंग क्लासेस डन फॉर टुडे, जो कि है आपका लिंक लिस्ट जो है बेसिक और टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट. बेसिक वो खत्म हो गया. वी विल सी इट प्रोग्रामिंग वाइज इन जावा राइट टुमारो. फाइन. तो यहाँ तक आपके कुछ भी इशू है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो. एनी इशू यू कैन डिस्कस इट विद मी कि सर ये कैसे हुआ, इसको कैसे यूज करेंगे एंड ऑल. Most probably Ishita will get the answer tomorrow when we will do it in Java. That's how it will be done in Java. What a static sign is doing there, and if it is not getting used, how we will do that. Fine. Any other student who is having any issue that जितना हमने पढ़ा? ठीक है. अब इसको अगर MCQs पे आप जंप करना चाहते हो तो यू कैन जंप ओवर इट एंड कुछ बनाना और बताना मेरे को कुछ इश्यू होएगा तो. और प्रतीक और चिराग और गौरव, share that question with me so that I can see and I can make it my own and I'll share it with you. Fine. तो कोई और क्वेश्चन हो तो बताओ यहाँ तक. Any question? Fine. So let's take the attendance. क्वेश्चन है सर, क्लास लीव कर दें, वैक्सीन लेने जाना है. नंद किशोर जाओ. So let me check with your attendance. So pay attention to your
So everyone, just pay attention to your roll call and Abhimanyu Singh Rana. Okay. माइक नहीं लिया अभिमन्यु. अभिषेक 1004. अभिषेक. अभिषेक 1004 is absent. Fine. Abhishek Kondal is absent. Abhishek Verma is absent. Akanksha. Present, sir. Okay. Akshay. Present, sir. Aman Rana. Present, sir. Aman Sharma. Present, sir. Ankit Sharma. Present, sir. Annie. Annie is there? Present, sir. Okay. Anshul Masand. Present, sir. Anuj. Anuj. Anuj Vasist. Present, sir. अनुज है अभी तो था क्लास से पहले. अनुज वशिष्ठ. अनुराग रांगरा. अनुज. Present, sir. Okay, okay. Anush. Anush is there? Anush. क्या सो जाते हो क्या यार तुम लोग? क्लास में ही बैठा हुआ है. अनुज वशिष्ठ. Present, sir. अनुराग रांगरा. अनुष. Present, sir. अनुराग या अनुष? Anurag, sir. Okay. Anush is there. अर्पिता. Yes, sir, Anush. Okay. बोलते कहाँ कहाँ चले जाते हो खाना खाने? अर्पिता. Present, sir. अर्शिता. Present, sir. अरुण. अरुण. आर्यन मल्होत्रा. Yes, sir. Okay, अरुण is absent. जिनका हो गया वो जा सकते हैं. आशुतोष नेगी. आयुष Present, sir. बंसल. आयुष बंसल. Okay, Present, sir. आयुष मिश्रा. Present, sir. आयुषी. आयुषी. Absent. Okay. Ayushi is absent. Bhupin. Yes, sir. Bipasha. Present, sir. Bodhi Verma. Present, sir. Sumant Reddy. Present, sir. Chirag Chawla. Present, sir. Chirag Kaushik. Present, sir. Dipanshu Misra. Yes, sir. Dipesh. Present, sir. Devansh. Present, sir. Dhruv. Present, sir. Dikshita. Present, sir. Gaurav. Present, sir. Gaurav Sivaj. Present, sir. Gitanjali. Present, sir. Himanshu Sharma. Present, sir. Ritik Roshan. Present, sir. जयेश मुंद्रा. चला गया ये. जयेश मुंद्रा. क्या यार. आओ कैंपस में तुम लोग एक बार. जयेश मुंद्रा. कनक गोस्वामी. Present, sir. कृष्णा. Yes, sir. मानिक. Present, sir. मनजोत, मन्नत. Present, sir. मेहुल. मेहुल शर्मा. मेहुल शर्मा is absent. मुकुल. मुकुल. मुस्कान. Present, sir. Okay.
Mukul Sharma is there, but he is not having time. Jay is present. Okay. मुस्कान हो गया. नंद किशोर वैक्सीन लेने गया. नवदीप. Present, sir. Navdeep. Okay. नीरज. Yes, sir. निखिल डोगरा. Present, नितिन sir. सैनी. पारस छाबरा. मानिक प्रेजेंट कर दिया आपका. निखिल डोगरा is there. Yes, sir. Present. Nitin Sani. Nitin Sani is there. Present, sir. Present. Paras Chabra. Okay, okay, Nitin. Paras Chabra. Paras Chabra. Parminder. Paras Chabra is absent. Parminder. Absent. Parminder is absent. Prateek. Prashant Nadda. Yes, sir. Priyanshu Raj. Yes, sir. Present, sir. Rajat Chaudhary. Present, sir. Sachin Thakur. Sakshi. Present, sir. Sachin Thakur is there. Shivam Mehra. Present, sir. Shivam Thakur. Present, sir. Aspars. Sumit. Tanveer. Present, sir. Okay. Vartika. Present, sir. Vijaya. Present, sir. Okay. So Shivam Thakur is there or not? Prashant Nadda present है. आप मेरे को बताओ जितने लोग आए हो. परमिंदर है. Shivam Thakur present. हाँ, शिवम ठाकुर present. परमिंदर है. परमिंदर. 1084. 1008 who is? 1084, sir. कौन? नाम बताओ ना. Aryan. आर्यन. आर्यन तो प्रेजेंट है. मैं बता रहा हूँ जो जो है एब्सेंट. अगर आप लोग प्रेजेंट हो तो बता देना. आर्यन मल्होत्रा राइट प्रेजेंट. अभिषेक एब्सेंट है. अभिषेक कौंडल एब्सेंट है. अभिषेक वर्मा एब्सेंट है. अरुण एब्सेंट है. आयुषी एब्सेंट है. मेहुल शर्मा एब्सेंट है. पारस छाबरा एब्सेंट है. परमिंदर एब्सेंट है. That's it. Sachin Thakur is present, but what names I have taken, those are absent. Fine. Thank you.